Fair enough. Okay, guys, good morning. I am Suman, and I have been taking a lot of subjects with your institute. I'm there since last 7 years. Okay, and I have dealt with a lot of subjects like economics, finance, accounts, marketing, HR, um, business research, policy planning, and not many more. Okay. So before I start, I just want to know your bit of your background so that I can understand कि आप लोगों को इस particular subject का कितना basic understanding है, क्योंकि हम लोग जब एग्जाम्स में बात करते हैं तो मैंने क्या देखा है, आप लोग यहाँ है ना एग्जाम्स में भी अब डायरेक्ट क्वेश्चंस आने तो बंद हो गए हैं, तो इनडायरेक्ट क्वेश्चंस आते हैं कि आप ये क्यों पढ़ते हैं इस सब्जेक्ट को, या इससे आपकी एप्लीकेशन क्या है, आप क्या समझते हैं, या इस पर्टिकुलर सिचुएशन में क्या चीज अप्लाई होगी, मतलब किस माध्यम से आप देखते हैं. तो ऑल सच टाइप ऑफ क्वेश्चंस कैन बी डेल्ट व्हेन यू हैव अ कंप्लीट अंडरस्टैंडिंग ऑफ द ऑब्जेक्टिव of your subject, objective of your topics and the applications, कि भाई कहाँ कहाँ वो अप्लाई होता है, कहाँ कहाँ उसका एक ऑब्जेक्टिव डेवलप हुआ है, जिसके बेसिस पे आपको इस पर्टिकुलर सब्जेक्ट को पढ़ना पड़ रहा है बीइंग अ साइंस प्रोफेशनल इन योर फील्ड. ठीक है. Yes, तो ma'am. मेरा सबसे पहले आप लोगों से दो चीजें मैं पूछना चाहूंगी. फर्स्ट, आई वांट टू नो अबाउट योर इंट्रोडक्शन. सेकेंडली, आप लोगों की क्या अंडरस्टैंडिंग है इस पर्टिकुलर सब्जेक्ट और इस इन पर्टिकुलर टॉपिक्स को लेकर. ठीक है. तो हु विल स्टार्ट फर्स्ट? Ma'am, myself Dr. Ujjwal Sardar. ओके. I am a medical background. ओके. जॉब कर रहा हूँ NHM में. कहाँ जॉब कर रहे हैं आप? NHM, त्रिपुरा NHS. स्टेट. Okay, Yes. nice, very nice. So, what is your field like? I mean, are you doing some? मैम एक्चुअली RBSK राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम is a district program officer. Okay, so your what is your field speciality? Especially BHMS. अच्छा. And now first year complete MPH. तो नहीं, when you say डॉक्टर, तो आप जब बोलते हैं तो फिर उसमें आपका मेडिकल स्टडी, आपने MBBS, you done MBBS? नहीं मैम BHMS. अच्छा, BHMS. ओके ओके, गॉट इट. Yes, yes. ठीक है, ठीक है, ठीक है, गॉट इट. ओके, देन मूविंग टू नेक्स्ट. Hello, ma'am. Good morning. गुड मॉर्निंग. I'm Dr. Rajiv. I'm from Imphal, Manipur. ओके. And same background like Dr. Ujjwal. I'm also from homeopathic background. And ओके, I've completed that first year MPH. वेरी And नाइस. now I'm working as a MO in a private hospital in Imphal. ओके, वेरी गुड. And So where is your hospital located? it's located in the proper city of Imphal. And it's more of like a gynae practice, and we have also expanded in terms of IVF and all also. Very nice, wonderful, wonderful. Okay, moving to the next. Yeah, ma'am, good morning, ma'am. Yeah. Morning. So myself, Dr. Kusum Barua. So my background is I'm a BAMS doctor, and, currently working in a private hospital in Guwahati, Assam. Wow, And currently I'm working in the Department of Nephrology as a resident medical officer. very So nice. I have total 11 years of experience in clinical sector. Okay, so quite intellectual group, huh? Yes, ma'am. Thanks for your Correct. compliment, ma'am. Correct, correct. Very nice, very nice. Okay, okay. So this is a great, great introduction from all of you. Now moving on to next, and then in case you want to ask anything about me, you can ask that also. Okay, sure, ma'am. Right? Okay. And then moving on to the next question, that what do you understand by economics, or what do you understand by healthcare policy planning economics? Because the subject that you're going to study is the healthcare policy planning and economics. So why I'm asking, because I need to understand that what is your, since you people are quite professional, educated and mature also, and you guys are working for the organization, so I'm sure you should be in a position to apply the concepts that we are going to study in the class today and in the upcoming classes also.
So what do you, so before I start, I want to know your understanding on that. So what do you think? Like, what is the objective? हमें पढ़ना ही क्यों है इस subject को? हम लोग सब doctors हैं, right? Not me. I mean, you guys are doctors, and you people are, you know, dealing with the medical industry, medical, you know, patients. You are working for medical industry. So why do we need to study this? मैम एक्चुअली कोई प्लान करने के लिए मतलब हम लोगों का जैसे हेल्थ प्लान, हेल्थ प्लानिंग करने के लिए ये जो फाइनेंशियल रिसोर्स ये इम्पोर्टेंट हाँ. फॉर द इकोनॉमिक यूटिलाइजेशन ऑफ Very good. मटेरियल, मैन पावर एंड फाइनेंशियल रिसोर्सेस. तो इसके लिए मैम ये एनालिसिस होना जरूरी है, इकोनॉमिक पार्ट. Beautiful, beautiful. Okay. Any other input from any other person? Yeah, ma'am. Exactly. In any, not only in the healthcare endeavor, but in any such kind of activities, whether it is a government business or a private business, whatever it is. So if we consider the strategy or the business strategy as a, or planning as a backbone, then the finance and economics is the circulatory system of that particular endeavor. So the knowledge of finance and economics is very important in healthcare sector. Wonderful. Very nice. Okay. So when we talk about economics, right? So as you know, you're talking about like subject which says healthcare policy, planning and economics. क्योंकि healthcare industry से deal कर रहे हैं, तो उस healthcare industry के अंदर किस type की policies चल रही हैं, क्या planning है, और economics factors क्या है, या economics applications क्या है, ये हम पढ़ने जा रहे हैं इस subject में. क्यों पढ़ रहे हैं? क्योंकि because ma'am, we have limited economic resources and we have to optimize those resources to get the objectives and the outcomes. you have studied economics पहले? Have you studied economics? Pardon, please. Have you studied economics earlier? Have you studied? No, and not as No, a no, subject. no. No, we have not studied economics as a Then subject. I must say you have given me a beautifully technical answer. Thank you so much. Very good. Okay. Excellent answer. Right. So what he's trying to say that economics always helps to take proper decision in terms of optimum utilization of resources, because resources are scarce and their requirements are huge. Okay. देखो, हमारे चाहे देश की बात करें, चाहे हमारे किसी ऑर्गेनाइजेशन की बात करें, या पर्टिकुलर किसी स्टेट की बात करें, या एज अ होल ग्लोबल वर्ल्ड की बात करें. ओके, सो वी हैव लिमिटेड रिसोर्सेज. फॉर एग्जांपल, लेट्स नॉट ओनली टॉक अबाउट स्किल रिसोर्सेज, यू टॉक अबाउट एनी रिसोर्स. आप ड्रिंकिंग वाटर की बात करें, पानी बहुत सारा है लेकिन ड्रिंकिंग वाटर लिमिटेड है. आप पैसे की बात करें, ऑब्वियसली मनी इज ऑलवेज लिमिटेड, करेक्ट, एंड इट हैज अ अनलिमिटेड usages. Okay, Yes. this it can be used in many forms. For example, हम बहुत छोटा सा एग्जांपल लेते हैं, हम मिल्क की बात करते हैं. घर में हमारे मिल्क आता है. So guys, you guys are comfortable in, you know, English, Hindi both, or you want me to speak only in English? Ma'am, English, Hindi both. Both. Okay. Okay. So let's talk about the example of milk. हम दूध की बात करते हैं. आप दूध को जब घर में लाते हो, आपको you can consume it as a tea, you can consume it as a milk, you can make some ice cream out of it, you can make some cheese out of it, you can make some multiple items out of it, right? अब आप ये डिसीजन कैसे लोगे कि क्या बनाना है, दूध को हमें कैसे यूटिलाइज करना है. आपको ये देखना पड़ेगा आपके घर में फैमिली मेंबर्स में है कौन. फॉर एग्जांपल, छोटा बच्चा है, तो छोटे बच्चे को एज इट इज मिल्क आपको कंज्यूम कराना होगा, करेक्ट. Yes. घर में बड़े हैं, चाय पसंद करते हैं, चाय बनानी है. घर में स्कूल गोइंग किड्स हैं, दे लव आइसक्रीम, तो उसका आइसक्रीम ज्यादा बनाएंगे. तो पर हम ऐसा तो नहीं है ना कि सारे दूध को एक ही फॉर्म में ले सकते हैं, नहीं, मल्टीपल फॉर्म में ले रहे हैं, लेकिन जो मिल्क है उसकी क्वांटिटी तो लिमिटेड है ना. ऑफ कोर्स वी कैन बाय मोर, बट यू नो, लेट्स टॉक फ्रॉम द इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू, ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन पॉइंट ऑफ व्यू.
हम मिल्क ले लेंगे। अच्छा, मिल्क का चलो हमने ऑल्टरनेटिव है हमारे पास कि हमने मिल्क और ले लिया हमारे पास, क्योंकि मे बी एज पर अवर इकोनॉमिक पावर वी कैन बाय मोर, ठीक है। लेकिन लेट्स टॉक अबाउट मनी। मनी तो हर फैमिली में लिमिटेड है, yes, चाहे वो कितना भी रिच हो, कितना भी पुअर हो, कितना भी मीडियोकर हो, करेक्ट। सो दे अगेन हैव टू मेक अ प्लान आउट ऑफ इट, whether it is going to be used in the current expenses more, whether you want to buy a luxury life, whether you want to save for the future. And in case, for example, you have kids at home, then of course you have to save for their education also, correct? yes, So keeping all these factors in consideration, what we conclude is कि पहले से resources कम है, ऊपर से उनके unlimited utilization है, ठीक है। लिमिटेड रिसोर्सेज, स्कैर्स रिसोर्सेज, और उसके बाद अनलिमिटेड वांट्स। आप फॉर एग्जांपल घर में अगर बच्चे हैं, कॉलेज गोइंग स्टूडेंट्स हैं, या स्कूल गोइंग 11th-12th के बच्चे हैं, ऑब्वियसली आप अगर आप घर में आपने एक गाड़ी मेंटेन किया ना, एंड देन दे आर गोइंग टू स्कूल एंड दे सी देयर कंपेनियंस देयर, वहां पे फिर उसके पापा के पास तो वाली भी गाड़ी है, उसके पापा के पास तो वाली भी गाड़ी, पापा आप क्यों नहीं ले लेते एक ये वाली गाड़ी? You get to see these kind of things, right? yes sir, है ना। तो ये, और ये सबके साथ होता है, उस एज में सभी के साथ होता है, हमारे साथ भी हुआ था। सो दैट मीन्स कहीं ना कहीं आपको या आपके पापा को जब गाड़ी लेनी है या घर में इन्वेस्ट करना है या सेव करना है, तो उनको तो डिसीजन लेना पड़ेगा ना, उस पॉइंट ऑफ व्यू से कि भाई जो मेरे पास पैसा है उसका मैं बेस्ट यूज करके अपने बच्चों को मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन दे सकूं, राइट? yes, पता चले you have the money to buy another car, but then if at the end you are not able to save money for your children education, in that case what will you do? You will again be stuck. Any other example you want to give, guys? Any other example from your side? मैम इनकम फैमिली का वन मैन इनकम होता है, रिसोर्सेज वन, बट यूटिलाइजेशन तो हर पीपल में है। Sorry, मतलब come again, I didn't understand, voice problem मैम था। हम लोग का 5 का जो फैमिली है, 5 मेंबर्स का, उस फैमिली का इनकम मतलब रिसोर्स पर्सन वन, और एक्सपेंडिचर तो बहुत सारे। ठीक है, कोई पर्टिकुलर एग्जांपल दो, जैसे मैंने दूध का एग्जांपल दिया, पैसे का एग्जांपल दिया, कोई और एग्जांपल। एंड फॉरगेट अबाउट ओनली घर से, हम कंट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें, या आप आपकी ऑर्गेनाइजेशन के, जिस ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हो उसमें बात करें, कोई पर्टिकुलर स्किल को लेके बात करें। ओके, हाँ बताओ गाइस, थिंक अबाउट इट, ऐसे क्वेश्चंस आते हैं। मैम हम लोगों का जैसे इस स्टेट में कोई प्रोग्राम इम्प्लीमेंट होता है, तो तब रिसोर्स पर्सन, जो टेक्निकल पर्सन काम होता है, यूटिलाइजेशन हर प्लेस में उनको यूटिलाइज कर जाता है। You mean to say मतलब मैम टेक्निकल पर्सन, हाँ, जब भी कोई प्रोग्राम लॉन्च करते हैं तो उसको प्रोग्राम को लॉन्च करने के लिए जो स्किल्ड लोग हैं, जो उसको इम्पार्ट कर सकते हैं, स्प्रेड कर सकते हैं, जो उन पॉलिसीज को, उन प्रोग्राम्स को रन कर सकते हैं डिफरेंट प्लेसेस पे, वो कम है ना। तो आपको ये देखना पड़ेगा भाई, अब मुझे बताओ उसमें डिसीजन मेकिंग क्या करनी पड़ेगी। फॉर एग्जांपल यू आर प्लानिंग फॉर, मैम उसमें तो एक प्लान करना पड़ेगा फास्ट। क्या प्लान में मतलब वो जो रिसोर्स पर्सन कम है, बट हम लोगों का ये प्लान करना है ऑब्जेक्टिव, हम लोगों का ऑब्जेक्टिव क्या है, पॉलिसी क्या है, मतलब प्रोग्राम क्या करना चाहिए, मतलब वो रिसोर्स पर्सन कम यूज करके कम से हम लोग ये टोटल सिस्टम को रन कर सकते हैं।
एक प्रोग्राम बनाना पड़ेगा, शेड्यूल बनाना पड़ेगा, एक मतलब टोटली एक प्लान करना चाहिए, जो प्लान में ये जो कम मतलब कम रिसोर्स यूज करके ये टोटल प्रोग्राम का हम रन कर सकते। सो आपने वहां पे प्लानिंग क्या करी बाबा? क्वेश्चन ये है, प्लान करना मैम पड़ेगा। प्लानिंग, ओके मैम, प्लान में एक ऑब्जेक्टिव्स होगा, उसके बाद एक पॉलिसी होगा, उसके बाद एक प्रोग्राम होगा, शेड्यूल होगा, बजट होगा। मैंने प्लानिंग के अंदर ये 5 एलिमेंट्स होगा। आपने एलिमेंट्स बताए मुझे प्लानिंग के कि मुझे क्या क्या, पर आपको प्लान Yes, क्या ma'am. करना है? सोचो सोचो, एक्चुअली मैम प्लान में थोड़ा मैम टू मैच द लिमिटेड रिसोर्सेज विथ मेनी एग्जैक्टली प्रॉब्लम्स। एग्जैक्टली आपको ये प्लान करना है कि जो आप अपना प्रोग्राम डिफरेंट प्लेसेस पे रन करने जा रहे हो, कौन सी प्लेस पे एरिया वाइज कितने 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 रिसोर्स मुझे एलोकेट करने पड़ेंगे, ठीक है? यस मैम। उसके हिसाब से आप कितनी सैलरी दे पाओगे। तो बजट्स और ये जो आप प्लानिंग है, स्ट्रेटेजिक प्लानिंग है, लोकेशन है, ये सारी हाँ हाँ चीजें हाँ। बाद में डिसाइड करनी पड़ेंगी। क्लियर? ओके मैम। यस यस यस। करेक्ट। सो अब हम पढ़ेंगे कि भाई इकोनॉमिक्स क्या है, उसमें सेंट्रल प्रॉब्लम्स क्या होती है, एंड आई विल ऑल्सो टीच यू अबाउट द डिमांड एंड सप्लाई टुडे। उसके बाद जैसे जैसे हम लोग प्रोग्रेस करेंगे, हम पॉलिसीज, प्लानिंग और ये सारी चीज, क्या क्या हेल्थ केयर प्रोग्राम्स हैं हमारे पास, उसको और चलाने के लिए क्या क्या, वो सारी चीजें हम लोग पढ़ेंगे। उसके बेनिफिट्स क्या हैं, हेल्थ केयर लेजिस्लेशन कैसा है हमारा, ओके मैम। और क्या क्या फाइनेंसिंग हो रही है, किस तरीके से हम लोग को फाइनेंसिंग हो सकती है इन पर्टिकुलर एरियाज में, ठीक है? दैट ओके, चलो। So, what is economics and what are the types of problems in the economy? है ना, हमारे पास economics क्या है बेसिकली, और टाइप्स ऑफ इकोनॉमिक्स क्या होती है, और उसके अंदर सेंट्रल प्रॉब्लम्स क्या है, क्यों हमें मतलब ये पढ़ना पड़ा। हम एमपीएस के अंदर हम लोग इकोनॉमिक्स और ये सब चीजें इसलिए क्यों पढ़ रहे हैं, क्योंकि हमारे देश में या हमारे कोई भी पर्टिकुलर स्टेट में ले लो या फिर ऑर्गेनाइजेशन में हमेशा कुछ प्रॉब्लम्स होती हैं जो इकोनॉमी पॉइंट ऑफ व्यू से होती है, जिसके लिए हमें काम करना होता है। तो आई वांट समबडी टू रीड दिस फॉर मी, इकोनॉमिक्स से लेके यहाँ होल वर्ल्ड तक, लाउडली। हु विल रीड फॉर मी? मैम मैं पढ़ रहा हूँ। हाँ, पढ़ो पढ़ो बच्चे। And economic is a social science concerned with the production, distribution, and consumption of goods and services. It studies how individual business, governments, and nations make choice about how to allocate resources. Types of economy. The study of economic is generally broken down into two disciplines. Microeconomics focuses on how individual consumers or firms make decisions. This individual decision-making units can be a single person, a household, a business or organization, or a government agencies. Analyzing certain aspects of human behavior, microeconomics tries to explain how they respond to change in price and why they demand what they do at particular price levels. Macroeconomics studies an overall economy on both a nation and international level, using highly aggregated economic data and variable to model the economy. Its focus can include a distinct geographical region, a country, a continent, or even the whole world. Thank you. Okay, so guys, what do you understood from this? मैम ये जो एक टाइप्स ऑफ इकोनॉमी जो मैक्रो इकोनॉमी एंड माइक्रो इकोनॉमी, और इकोनॉमी टोटल जो मतलब प्रोडक्शन से एंड तक allocate resources. All are is a most important part of this economy. Correct.
सो बेसिकली गाइस, जैसे आप लोग साइंस पढ़ते हो, इकोनॉमिक्स भी एक सोशल साइंस है, ठीक है, Yes, जहां पर हमें तीन बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स देखने हैं, एक प्रोडक्शन, एक डिस्ट्रीब्यूशन distribution और एक and कंजम्पशन, consumption. ठीक है। प्रोडक्शन में क्या प्रोड्यूस करना है, क्या बनाना है, जैसे मैंने दूध का एग्जांपल दिया था, घर में दूध आया, Yes, दूध से चाय बनानी है या आइसक्रीम बनानी है, वो डिसीजन लेना होगा, ठीक है। yes, उसको कैसे डिस्ट्रीब्यूट करना है ताकि ज्यादा लोग हैप्पी रहे, मतलब अब जैसे बच्चे को दूध ज्यादा चाहिए, ऑब्वियसली बच्चे के पास एक ही सोर्स है ना, तो बच्चा दूध hmm. पिएगा। आप घर में बड़ों को चाय चाहिए, उसके अलावा आप अगर आइसक्रीम, घर में आइसक्रीम की रिक्वायरमेंट, तो आपने क्या किया, थोड़ी सी आइसक्रीम बना ली फॉर योर किड्स, रेस्ट ऑफ द पीपल को बोला कि आप लोग उसको मत खाओ, एडजस्ट कर लेते हैं, ठीक है। आप क्योंकि बड़े चाय से हैप्पी हो जाते हैं, छोटा बच्चा दूध से हैप्पी हो गया, और Yeah, जो मिडिल एज बच्चे हैं वो आइसक्रीम से हैप्पी हो गए, ठीक है। तो ice डिस्ट्रीब्यूशन cream, की बात yeah. भी हो गई, करेक्ट, और कंजम्पशन की बात भी हो गई, ठीक है। सो basically Yes, sir. from economics, what we do, how individual business, government and nations make choices about the allocated resources, like whatever resource you have in hand, आपके ऑर्गेनाइजेशन के पास जो पैसा है, उस पैसे को वो रिसर्च में लगा रही है, या उस पैसे को वो सस्टेन कर रही है, उस पैसे को वो इक्विपमेंट्स मंगा रही है, या उस पैसे से और डिपार्टमेंट्स डेवलप कर रही है, या उस पैसे से अपने रिसोर्सेज को ट्रेड कर, ये सारे डिसीजंस लेने को ही हमारा इकोनॉमिक्स का एप्लीकेशन है, ताकि मैक्सिमम यूटिलाइजेशन हो, आपके आपके हाथ में जो रिसोर्सेज है उसका मैक्सिमम यूटिलाइजेशन, ठीक है। मैम इसका मेन पर्पस है लिमिटेड रिसोर्स मैक्सिमम यूटिलाइजेशन. वेरी गुड, ठीक है। अब हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ इकोनॉमिक्स की। तो हमने बोला इकोनॉमिक्स को हमने दो डिसिप्लिन में बांटा हुआ है, एक तो आपका रहेगा माइक्रो और एक रहेगा मैक्रो। माइक्रो में व्हाट वुड वी स्टडी, दैट व्हेन वी टॉक अबाउट माइक्रो, दैट मींस स्मॉल, right? The Yes, scientific yes. meaning is small, and from there we will see how the individuals, consumers make decisions, and they also react to the changes in the price. मतलब मार्केट में जब प्राइस चेंज होता है, तो उनके डिमांड पे क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है, या सप्लाई पे क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है, मतलब एक इंडिविजुअल का क्या चेंज है उसमें, या इंडिविजुअल कैसे रिएक्ट करेगा उन चेंजेस पे जो मार्केट में हो रहे हैं, दैट वी विल स्टडी इन दी माइक्रो इकोनॉमिक्स। एंड व्हेन वी टॉक अबाउट मैक्रो इकोनॉमिक्स, मैक्रो मतलब ग्लोबली, मैक्रो मतलब जब आप बड़े लेवल पे बात करते हो, Global. ठीक है, या देश के बारे में। अब जैसे अगर माइक्रो की बात कर रहे हैं, तो मैंने बात करी एक इंडिविजुअल की, मैक्रो की बात करी तो टोटल जितने लोग हैं उन सब की, ठीक है, या बड़े लेवल की ग्रुप की। जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप स्कूल में कुछ एनालिसिस कर रहे हो, आपने एक दो बच्चों के रिजल्ट को लेके एनालिसिस किया, दैट विल बी माइक्रो एनालिसिस। आपने पूरी क्लास को लेके किया, मैक्रो एनालिसिस। बट व्हेन यू डूइंग एनालिसिस ऑफ द स्कूल, तब आप अगर एक दो क्लास का टोटल ले लेते हो, दैट इज माइक्रो, और सारी क्लासेस का टोटल ले लेते हो, दैट इज मैक्रो, Macro. ठीक है। मैम इसको कोई लिमिटेशन है जो ऐसे पार्ट में माइक्रो एंड हो जाएगा उसके बाद नहीं macro? नहीं, कोई वो नहीं है। देखो गाइज, ये ना आपका जब रिसर्च में, जैसे आप रिसर्च करते हो या एनालिसिस करते हो या सैम्पलिंग करते हो, तब आप देखते हो कि किस लेवल पे काम चल रहा है, मतलब आपका जो पर्पस है स्टडी का, वो किस Yes. लेवल का है, ठीक है। वो आपका माइक्रो लेवल पे करना चाह रहे हो, मैक्रो लेवल पे करना चाह रहे हो, स्टेट वर्सेस वर्ल्ड करना, कंट्री करना चाह रहे हो, कंट्री वर्सेस वर्ड करना चाह रहे हो, तो वो उस पर डिपेंड करेगा कि आपका माइक्रो का क्या मतलब हुआ और मैक्रो का, ठीक है। ओके मैम. अच्छा मैम और एक क्वेश्चन है. फॉर एग्जाम्पल मैं, लेट मी कंप्लीट, उसके बाद क्वेश्चन। ओके ओके. फॉर एग्जाम्पल आप पूरी मेडिकल इंडस्ट्री का एनालिसिस करने जा रहे हो, तब माइक्रो क्या होगा, मैक्रो क्या होगा? पूरी मेडिकल एक हॉस्पिटल माइक्रो हो जाएगा. वेरी गुड, और सभी हॉस्पिटल टोटल को मिला के मैक्रो हो जाएगा। वेरी मैक्रो. हैंग ऑन, वेरी नाइस, वंडरफुल। हाँ, व्हाट वाज द क्वेश्चन? मैं बोल रहा हूँ इकोनॉमिक्स के ऊपर डिपेंड करके हम लोग डिसीजन मेक करते हैं ना. मतलब समझ नहीं आया। मतलब इकोनॉमी के ऊपर हम लोग का फंड के ऊपर डिपेंड करके हम लोग डिसीजन लेते हैं जो क्या क्या प्लान बनाएंगे. हाँ,
मतलब हाँ मैं बोल रहा हूँ, मैं इकोनॉमिक्स के ऊपर टोटली डिपेंड करके ही हम लोग डिसीजन तैयार करते हो ना। करेक्ट 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 करेक्ट। तो आप सिर्फ फंड पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं, आप अपने टोटल रिसोर्सेज के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करते हो हमेशा, ठीक है। हो सकता ओके। है फंड कम है आपके पास, लेकिन आपके पास हो सकता है वर्कर जो है वो बहुत स्किल्ड हो, तब भी आप अच्छा हाँ, कर सकते यस। हो, है ना। आपके पास पैसा नहीं है लेकिन आपके पास बहुत अच्छा हॉस्पिटल का इंफ्रास्ट्रक्चर है, तब भी आपके यहाँ पे बहुत चीजें तो बेटर। मैम टोटल रिसोर्स हाँ, टोटल रिसोर्सेस। Total resources means the मतलब economic मैम resources, the human resources, and all हाँ, these things. ऑल करेक्ट, Yeah. ठीक है, ओके क्लियर। मैम। अच्छा, अब एक नेक्स्ट आता है हमारा इकोनॉमिक्स, सेंट्रल प्रॉब्लम्स ऑफ एन इकोनॉमी। तो सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ इकोनॉमी मतलब किसी भी इकोनॉमी का प्रॉब्लम, चाहे वो किसी स्टेट का कह लो, चाहे वो कंट्री का कह लो, या फिर एज अ ग्लोब कह लो, एज अ वर्ल्ड कह लो, ठीक है। तो इकोनॉमिक प्रॉब्लम में आपको ये देखना होगा कि आपको चॉइसेस क्या क्या करने हैं, क्योंकि रिसोर्सेज बहुत कम हैं, अनलिमिटेड डिजायर्स हैं, और उन अनलिमिटेड डिजायर्स को सेटिस्फाई करना है, मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन भी देखना है, तो इसलिए हमारा सेंट्रल प्रॉब्लम रहता है, ठीक है। गाइस, do one thing, just read it out on your own self for take 5 minutes and then read this complete, क्योंकि मैंने ये ऑलरेडी बता दिया है आपको। इसको एक बार डिफाइन कैसे किया हुआ है वो पढ़ लो, और उसके बाद फिर हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है। ओके 5 minutes, ma'am. 7 minutes। बट ओके। गाइस, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसलिए इसको थोड़ा अच्छे से पढ़ना, मतलब भागना नहीं है हमें, हमें तैयार करना है अपने आप को एग्जाम पढ़ने के Okay, लिए। ma'am. Take five, यस 7 यस। minutes, no problem. Read it out on your own, and then I will give you the gist also. Okay? Okay, ma'am. ओके। कुसुम, हाँ बोल। कुसुम, हाँ बोल तू बोल, सुन भाग रहा हूँ बोल। जाता है क्यों भाई? अरे अरे यार, मेरा कोई नेटवर्क प्रॉब्लम है इसलिए तो। उज्जवल, यस। तू बहुत सारे क्वेश्चन पूछता है भाई। अच्छा अरे है, इकोनॉमिक्स पूछना को चाहिए। जानना है ना भाई, ये नहीं जानेगा तो हाँ, सब कोई जानना इंडस्ट्री है तुमको नहीं लेकिन लेगा। बहुत सारे क्वेश्चन पूछता है ना। ये ठीक है, बहुत अच्छा है इंपॉर्टेंट यार, पार्ट है पूछने भाई। दो। लंच खाया है क्या? अभी हाँ, अभी क्या लंच भाई? ओए 10 तो बजे कब है अभी। खाओगे? अभी लोग लंच करेगा क्या? साला ब्रेकफास्ट कर रहा हूँ मैं। ब्रेकफास्ट खा के अभी मैं संडे, लैपटॉप पे बैठा हूँ, तो लंच की बात नहीं कर नहीं रहे हैं, नहीं तो भाई, सो आज के उठना संडे कब का है यार? दिन है, संडे का दिन है भाई, हाँ, थोड़ा तो रिलैक्स करने दो। कनाडा हाँ वैसे लंच करेगा 2 PM। 2 Guys, PM। guys, यस। हेलो। बात आपस में बातें शुरू हो गई सबकी। सॉरी मैम, सॉरी। कोई बात नहीं, लेकिन अभी पढ़ ली, पहले टॉपिक खत्म कर लेते हैं, हम थोड़ा सा बाद में भी करेंगे, चिल आउट, ठीक है। ओके। हाँ ओके मैम। हाँ हाँ, ठीक है, चलो इसको इसको पहले स्टार्ट। ओके मैम, ओके। हाँ हाँ, अब बिना बिना किसी बात के कॉन्सेंट्रेट ऑन दिस टॉपिक। अभी आई थिंक सबने कर लिया होगा ब्रेकफास्ट, है ना। हाँ यस मैम, हो यस गया। मैम, यस। ठीक है, तो एनर्जी है ना, एनर्जी प्रॉब्लम तो नहीं है ना। बिल्कुल मैम। फुल एनर्जी है मैम। वेरी गुड, ठीक है। तो इसको इसको खत्म करते हैं। your ओके। time starts now, don't waste your time now here, you please study this, okay।
나구리네. 지금 독일 가면 벌. कुछ बर्थडे घूमने सुमाइना एलिस तंग कनोमनी दोने तो हुआ है नते चेंग है युम दे लेना एलिस 20-30 केजी इम्पोर्ट ने तंग के जी पोंगम गो बामो ने कनो पासले गो नती है अंगाव थोंग पिजा गदम नते पोत दोने तो मोइनम ताजर जुय नंगावा हवाई केजी 10 अरे आलू हाउ चेंग खगा पिरमबदा माई बर्थडे रे तो सब्जेक्ट ऐसा ने खगा दोने तो फलो अदुने जे तो भी तो रो तो वे ना कैसे तो पैसा कौन वाला ले काय लेके और फन जोइन तौजे नहीं मुदन वाला और फन होम ले या भी खुले ना कोई मानबा अमा ले मोइने याम तोइना कनो विदरा इनिशिएटिव लॉर तो पीओ गेट होगिदा नते आई माना सी टीवी टावर डेम ले फोटो चैनल मान लोखन में मोइने तौरगा म तो ने तो को मैं मोइने लोखन ले नते अदु ju ka tau be na nangonda lupa chonga do nang kapiro nang chigi tau ja bi adu post tau ja na mana le kapa kani bi kapo de to fe tau be ji ngai de yum de le ho rong nung ti le ma li ma ngang pi ta ba ko de bi de guys done yes sir सभी ने हाँ मैम हाँ तो मोटा मोटी वही बात है स्कैसिटी है अनलिमिटेड ह्यूमन वांट्स है और सब yes yes के ऑल्टरनेटिव यूजेस है जो हम लोगों ने भी एग्जांपल स्टडी किया था ठीक है आगे बढ़े yes yes sir ठीक है fair enough। तो अभी कभी क्वेश्चन आता है कि हम लोगों ने क्यों पढ़ा है और वो सब चीजें भी हैं उसमें अच्छा देन दीज आर द इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स लाइक व्हाट टू प्रोड्यूस हाउ टू प्रोड्यूस फॉर होम टू प्रोड्यूस इसमें हम लोग इस पर्टिकुलर कर्व को भी पढ़ेंगे एंड वी विल सी कि व्हाट इज द वे टू प्रेजेंटेड ऑन द प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी ठीक है पीपीसी बोलते हैं इसको ठीक है अच्छा चलो ये यहाँ पे सो लेट्स टेक वन बाय वन एक बार इसको भी आप लोग थोड़ा सा ना पढ़ लो एंड देन आई विल एक्सप्लेन इजी हो जाएगा फिर फटाफट इसको भी जल्दी से 5 मिनट लगा के खत्म कर सेल्फ रीड एंड कॉन्सेंट्रेट हियर
Guys, let me know when you're done with it. ओके ओके उज्जवल आप ही रह गए, बाकी का ड्रॉप हो गया। शायद नेटवर्क का प्रॉब्लम हो सकते हैं। ठीक है, अच्छा मैम, हाँ बोलो। अपना आपका नंबर भी दे सकते हो मैम? मेरे ग्रुप में होगा, व्हाट्सएप ग्रुप में मैं एडेड हूँ। इस ग्रुप में है। हाँ तो मैम आप ना इकोनॉमी के बारे में क्लास स्पेशल क्लास लेना है आपको, जो चार्ज है मैं पे करूंगा। मतलब क्योंकि मैम ये मेरे को जानना है, मैं एक प्रोग्राम ऑफिसर हूँ, बट अच्छा, ये अदर प्लेस में मैं जा सकता हूँ, तो इसी को डिटेल्स में मेरे जानना है। तो आप ये पढ़ोगे तो आप इसमें जान लोगे ना, पढ़ते पढ़ते ही। नहीं नहीं मैम, ये तो ज्यादा नहीं है ना, ये थोड़ा क्योंकि यहाँ पे प्लानिंग मैनेजमेंट एंड इकोनॉमिक्स है। तो by the time like I mean you will complete your qualification, you will study all these in detail also. ठीक है, चलो नहीं, मैं आपको अलग से बताती हूँ फिर कुछ, है ना, आप हाँ लोग हाँ मैम, मेरा नहीं मैम, एक क्यों बोल रहा हूँ मैं, एक्चुअली मैम मैं ये जो हेल्थ केयर मैनेजमेंट के ऊपर एमबीए करूंगा, अच्छा। तो इसीलिए मैं बोल रहा हूँ। तो आपका जो अलग चार्ज है आप बोलेंगे तो मैं पेड करूंगा। पेड करके आप वीकली और मंथली 2 और 3 क्लासेस प्लीज अरेंज मैम, पर्सनली ओनली। और आप लोगों का कोई स्टूडेंट है उसके साथ भी एडजस्ट कर दे सकते हैं, कोई प्रॉब्लम। आपको मेरा समझ आ रहा है? यस मैम, अच्छे अच्छे लग रहे हैं, क्योंकि मैं अदर्स एक्चुअली मैम ये लोग जानते नहीं है, और मैं इन लोगों का पता भी नहीं है। ऑनलाइन मणिपाल से ऐड हूँ, तो मणिपाल में जो इकोनॉमिक्स पार्ट पढ़ा रहे इतना अच्छा नहीं था, अच्छा। तो इस ईयर में ही मैं एंट्री लिया। हाँ ओके। तो मैम ये आप डिटेल्स मेरे को जानना चाहिए अच्छे से। अब तो पहले भी मैम फर्स्ट ईयर में मैनेजमेंट का कुछ क्लास लिया था, मैं शायद मेरा रिमाइंड हो रहा है। हाँ स्टार्टिंग में मैनेजमेंट कैसे होगा, कैसे करेगा, ये एनएचपी साथ एक साथ भी था तब, हाँ ओके। तो तब से मैं आपको जानता हूँ अच्छा बिफोर 1 ईयर्स। ओके ओके, ठीक है, नाइस। ठीक है मैम, मैं आपको फोन करूंगा। हाँ हाँ, वी विल टॉक अबाउट इट लेटर। अभी ओके ओके मैम, देखो, वैसे ना इस आपको मैं आई कैन हेल्प यू टू रेफर सम बुक्स, आप वो पढ़ते रहना। बाकी ये है कि आपको जो आपको प्रोग्राम में हो रहा है ना एमपीएच में, यहाँ पे आपको एएचएमएससी सीखने को मिल जाएगा। मतलब यू विल गेट टू नो लॉट ऑफ सब्जेक्ट्स इन विद डिटेल, और ये सारी चीजें भी आपको समझ में आएंगी, तो आपको बहुत आपका खुद का नॉलेज एनहांस हो जाएगा। जो आपकी नीड है ना, आपकी रिक्वायरमेंट है, वो हाँ भी हो हाँ, जाएगा उसका। ठीक है ठीक मैम, है, आप फिर से भी कर देंगे। चलो चलो ठीक है। ओके ओके अच्छा मैम, चलो, बात करते हैं। कमिंग बैक टू दिस टॉपिक, लिस्ट ऑफ इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स है हम लोग की, भाई क्या प्रोड्यूस करना है, कैसे प्रोड्यूस करना है, और किसके लिए प्रोड्यूस करना है। क्योंकि हमारे पास लिमिटेड रिसोर्सेज, हमें चॉइस करना पड़ेगा कि हमें गुड्स ज्यादा डेवलप करने हैं या सर्विसेज डेवलप करने हैं। ठीक है, यस कि अभी देखना पड़ेगा ना, जैसे फॉर एग्जांपल आपको ये देखना है कि आपके कंट्री के लेवल पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो कंट्री किस सिचुएशन में है। क्या वो वॉर सिचुएशन में है, तो वॉर सिचुएशन में ऑब्वियसली डिफेंस गुड्स और ये सारी चीजें हमें ज्यादा तैयार करनी पड़ेंगी। और जो एग्रीकल्चर लैंड है या एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स है, उस पर हम कम काम करेंगे, राइट। तो मेरा ज्यादा इन्वेस्टमेंट शुड बी ऑन डिफेंस, सो दैट माय कंट्री विल बी इन अ सेफ पोजीशन, राइट। इन द सेम मैम, वे, ये एक्चुअली मैम ये डिपेंड करता है अभी क्या चेंज चल रहा है, अभी क्या पोजीशन है इसके ऊपर। एग्जैक्टली। मतलब वॉर के टाइम होगा तो डिफेंस के ऊपर प्रोडक्शन ज्यादा होना चाहिए। हम्म। ओके ठीक है, हाउ टू प्रोड्यूस ओके। में ये हमें कौन सी टेक्निक लेनी है, हमें कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक में जाना है या लेबर इंटेंसिव टेक्निक में जाना है। लेबर इंटेंसिव टेक्निक वो टेक्निक होती है जहां पर ज्यादा लेबर यूज हो और कम पैसा लगे, और ओके कैपिटल इंटेंसिव में ज्यादा पैसा लगता है, मशीन्स लगती हैं और लेबर कम लगती है। अगेन ये डिपेंड करता है लाइक व्हाट काइंड ऑफ कंट्री यू आर विथ,
what kind of people you have, what kind of technology you are going to adopt. For example, ऐसी टेक्नोलॉजी अडॉप्ट करने जा रहे हो जहां पर मैन पावर ज्यादा नहीं लगता। मैन पावर ज्यादा नहीं लगता, तो आपका वो कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक हो जाएगा, राइट। हाँ, आप उसमें, पर उसके लिए आपको ये भी देखना पड़ेगा आपके पास क्या उतना पैसा है, और yes, अगर ये भी देखोगे आप कि आपने ज्यादा रिसोर्सेज को नहीं लगाया, मतलब आपने लोगों को ज्यादा नहीं लगाया, तो अनएम्प्लॉयमेंट इसलिए होता है, करेक्ट। तो आपकी अप्रोच yes, इस तरह की होगी कि भाई मेरे ज्यादा से ज्यादा लोगों को एम्प्लॉयमेंट भी मिले। अगर आप देखते हो कि ज्यादातर एम्प्लॉय लोगों को एम्प्लॉयमेंट देने के बाद, लेबर इंटेंसिव टेक्निक जाने के बाद जो आपको कॉस्ट आ रही है उसकी वो इक्वल टू कैपिटल है, तो आप मोरलेस लेबर के लिए जा सकते हो। लेकिन अगर आपको लगता है कि 40% से ड्रॉप हो जाएगी आपकी कॉस्ट अगर आप कैपिटल। कैपिटल में जाओगे, तो यू कैन ऑप्ट फॉर द कैपिटल वन, राइट। बिकॉज आपको रिसोर्सेज भी तो देखने हैं ना अपने। हाँ मैम, इसी हिसाब से तो हम लोगों का कंट्री से तो लेबर इंटेंसिव टेक्निक ज्यादा यूजफुल होगा। डिपेंड करता है आपकी कौन सी इंडस्ट्री है, हाँ, डिपेंड करता है आपका क्या ऑब्जेक्टिव है, डिपेंड करता है आपके पास कितने फंड्स हैं, डिपेंड करता है आपके पास कितना टाइम है, डिपेंड करता है आपका क्या ऑब्जेक्टिव है उस पर्टिकुलर टाइम पर। जैसे ओके, फॉर एग्जांपल शुरू शुरू में जब ये कोरोना की मेडिसिन और ये इंजेक्शन और ये syringe वगैरह, तो लोग ज्यादा लेबर लगाई गई थी। उसके बाद धीरे धीरे जैसे जैसे मैकेनिज्म डेवलप होता गया, मशीन्स को इन्वॉल्व करने लग गए, राइट। यस, और हमें उस टाइम क्योंकि नीड इतनी ज्यादा थी, टाइम कम था, तो ऑब्वियसली स्पीड से काम चाहिए। दोनों एक साथ चाहिए। हाँ, राइट। सो डिपेंड्स ऑन द ऑब्जेक्टिव ऑल्सो, आपकी सिचुएशन क्या है ना। उसके बेसिस पे डिसाइड करोगे कि आपको कौन सी टेक्निक अपनानी है, फिर कौन सी टेक्निक में आपको कम कॉस्ट आती है, वो भी देखना है आप लोग। आपको हर एंगल से जज करना पड़ेगा, ठीक है। देन हाउ टू ओके, प्रोड्यूस हो गया, फॉर हुम टू प्रोड्यूस। फॉर हुम टू प्रोड्यूस की बात करें तो कि भाई किसके लिए हमें प्रोड्यूस करना है, मीन्स हमारी जो मैक्सिमम कंजम्पशन है वो कहाँ होगी, उसके हिसाब से प्रोड्यूस करना है। फॉर एग्जांपल आपके पास, आपने देखा कि हाई क्लास कस्टमर ज्यादा है, तो आप हाई क्लास मटेरियल ज्यादा बनाओगे, गुड्स ज्यादा बनाओगे। आपके पास मिडिल क्लास ज्यादा है, मिडिल क्लास के हिसाब से बनाओगे, ताकि ज्यादातर लोगों के पास वो रिक्वायरमेंट मीट हो सके, प्रोडक्ट पहुंच यस, सके, ठीक है, और ज्यादातर लोग सेटिस्फाइड हो, है ना। ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन, मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन, ये सारी चीजें हमें ध्यान में रखनी है। सो वी हैव टू सी हमें किसके लिए प्रोड्यूस करना है। नाउ वी हैव पीपीसी, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व। प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व क्या कहते हैं कि भाई हमें पता है रिसोर्सेज लिमिटेड है और उसके बहुत ऑल्टरनेटिव यूज है, ठीक है। तो उस केस में जब हम एक चीज का कंजम्पशन बढ़ाएंगे ना, तो दूसरी चीज की कंजम्पशन को मुझे कम करना पड़ेगा। जैसे फॉर एग्जांपल हमने मिल्क का एग्जांपल लिया था, अगर आपने आइसक्रीम ज्यादा बनाई, हो सकता है मुझे चाय कम करनी पड़े, ठीक है, ओके, ओके। क्योंकि देखो मिल्क तो उतना ही है ना। रिसोर्सेस तो ऐसे ही नहीं है। हाँ, तो अगर आप एक ओके, का प्रोडक्शन अरे बढ़ाओगे, एक का प्रोडक्शन ज्यादा होगा, एक कम करके। हाँ करेक्ट। तो अब देखो यहाँ पे इन्होंने एग्जाम्पल भी लिया हुआ है, ये देखो एक बार, जैसे पहले 100 एप्पल थे ए वाली सिचुएशन में, और 0 बीट था, है ना। आप टेबल यस, देखोगे तो जैसे जैसे मैं ई की तरफ जा रही हूँ, अगर मैं एप्पल बढ़ा रही हूँ तो मेरा मेरा सॉरी, जब मैं वीट बढ़ा रही हूँ तो मेरा एप्पल कम हो रहा है कम प्रोडक्शन, हो जाता है। यस, है ना। अगर मुझे पूरा ही वीट चाहिए तो मुझे एप्पल बिल्कुल खत्म करना पड़ेगा, खत्म, जीरो। ठीक है, क्लियर। यही चीज मतलब ये ग्राफिकल जो, फॉर्म में भी डाली हुई है। हाँ पूछो। नहीं नहीं, ठीक है मैम, ठीक। तो अब एक बार इसको प्लीज, इसको 5 मिनट लेके इसको पढ़ लो फटाफट से, एग्जाम में आता है तो हम ये पूरा पूरा बना लेंगे। प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी शेड्यूल, द हाँ, फर्स्ट यहाँ और से स्टार्ट। लेके नीचे नीचे तक पूरा फिर ग्राफ तक, ठीक है। 5 मिनट्स लो, इसको सेल्फ स्टडी करो, एंड ओके, देन ओके। यू अंडरस्टैंड और इफ यू डू नॉट अंडरस्टैंड।
Done for everyone? yes ma'am. सभी का हो गया ना? और Yes, एक ma'am. हो गया. ये ग्राफ एक बना. You have pen paper with you? yes Yes, ma'am. एक बार ये अपने हाथ से बनाओ प्रोडक्शन बॉक्स, क्योंकि एग्जाम में आ जाता है फिर नहीं बना पाते क्योंकि हमने प्रैक्टिस ही नहीं किया होता. तो जो आपने अभी ग्राफिकल प्रेजेंटेशन किया है ना, सॉरी जो आपने टैबुलर प्रेजेंटेशन किया है उसको ग्राफिकली बनाओ अपने हाथ से. इन डॉट्स को पहले लगाओ और फिर उसके बाद इस कर्व को बनाओ, फिर समझ में आएगा ये कर्व कैसे तैयार हो रहा है. ठीक है गाइस, ऑनेस्टली करो, अभी पेन पेपर लेके अब भी करो अपने हाथ yes से. yes हाँ हाँ. टेबल दिखाऊं आप लोगों को डेटा? बस ये ध्यान होना था, एक्स एक्सिस पे वीट आएगा और वाई पे एप्पल आएगा. इस वाले डेटा के हिसाब से बनाओ. तो देखो फिर ग्राफ आपका वैसा मैम ये एक्चुअली प्रोपोर्शनल रिलेशनशिप मैम. हाँ, ये जो एप्पल एंड व्हीट का जो रिलेशनशिप है प्रोपोर्शनल रिलेशनशिप. प्रोपोर्शनल रिलेशनशिप नहीं, मतलब इसमें हम ये दिखाएंगे कि एक को कम करने के लिए दूसरा इनवर्स है. ओके ठीक है. मैम एक्स पर क्या लेना मैम? वीट का ना तो एप्पल का? एक्स पर व्हीट. वीट ओके, वाई पर एप्पल. यस
Guys, let me know when you are done, okay? आप chat box में मैम डालो। मैम कंप्लीट डन हो मैम। गया। सबका हो गया? यस मैम। यस यस इस तरह से तैयार हुआ है? यस 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 ठीक है, जब आप तैयार करोगे पूरा तो यहाँ पे आपको लिखना है जिसको हम पीपीसी कर्व, पीपीसी फ्रंटियर भी बोलते हैं और ट्रांसफॉर्मेशन कर्व भी बोलते हैं। ठीक है? मैम प्लीज कैन यू रिपीट इट? हाँ, आई एम सेइंग, आप देखो, आप स्क्रीन पे देखोगे, ये आपका जो ग्राफ तैयार हुआ है ना, ये लिखा हुआ है यहाँ पे, इसको हम पीपीसी भी बोलते हैं, पीपीएफ भी बोलते हैं, विच इज प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर, और एक ट्रांसफॉर्मेशन कर्व भी बोलते हैं। यस मैम। ठीक है? यस मैम। अच्छा, अभी हो गया हमारे पास ओके। नाउ हेल्थ इकोनॉमिक्स। हेल्थ इकोनॉमिक्स क्या है एग्जैक्टली? हेल्थ इकोनॉमिक्स बेसिकली, अगर हम इकोनॉमिक्स की बात करें, जो लोग हेल्थ इंडस्ट्री के ऊपर काम करते हैं, एनालाइज करते हैं, पॉलिसी बताते हैं, स्ट्रेटेजी बताते हैं, तो वो लोग काफी चीजों को उनको स्टडी करना पड़ता है प्रोडक्शन के टाइम पे, जैसे कि एज वन ऑफ द पर्सन फ्रॉम योर क्लास सेट कि हमें प्लानिंग करनी है, बजट देखते हैं, हमें हेल्थ केयर को मॉनिटर करना है। सो ये सारे जितने इवैल्यूएशंस हैं वो किए जाते हैं कॉस्ट एंड बेनिफिट पॉइंट ऑफ व्यू से, कि भाई अगर मैं फॉर एग्जांपल आपने आपके ऑर्गेनाइजेशन में अच्छा प्रॉफिट डेवलप हुआ, नाउ उस प्रॉफिट से आपको क्या नया यूनिट बनाना है, या कोई नया डिपार्टमेंट बनाना है, या आप पर्टिकुलर किसी और स्टडी के अंदर जाना चाहते हैं, या आप कुछ एक्स्ट्रा डेवलप करना चाहते हैं, रिसर्च में जाना चाहते हैं। तो इस तरीके के जो प्लान्स पे हमें काम करना होता है, जिसमें हमें ये देखना पड़ेगा इन इन पर्टिकुलर पॉइंट्स में से या इन पर्टिकुलर प्लान्स में से बेस्ट कौन सा है। तो बेस्ट के लिए ये डिसाइड, बेस्ट का क्या मतलब होता है, देखो अब एग्जाम में अगर हम वैसे भी जनरल अपने डे टू डे लाइफ में देखें, जब आप मार्केट में कुछ भी शॉपिंग करने जाते हैं, फॉर एग्जाम्पल आप अपने लिए ड्रेस लेने गए, ठीक है, यू विल डिसाइड on the basis of the benefit that you are getting from the money that you are investing in, है ना, कि इतने पैसे में मेरा ये आ जाएगा, इतने पैसे में मेरे शूज भी आ जाएंगे, इतने पैसे में मेरे ड्रेस भी आ जाएगी, इतने पैसे में मेरा कॉस्मेटिक्स भी आ जाएगा, राइट? या यस इन सारे पैसे से मिला के मैं एक लग्जरियस ब्रांडेड ड्रेस ले लूं, ठीक है, पर आपको देखना होगा कि आपकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से आपका बेस्ट यूटिलाइजेशन कैसा हो रहा है, मींस which plan is giving you the maximum benefit from the money that you are investing in. Correct? ओके Correct. So यस health economics is also a discipline of economics which is applied to the topic of healthcare. So broadly defining, economics concern how society allocates its resources among alternative uses, and scarcity of these resources provides, one moment guys, huh? One moment. Okay, and then we also talk about scarcity of resources because हम लोगों ने हमेशा ही जिससे पढ़ा है from all the examples कि भाई हमारे रिसोर्सेज ऑलरेडी स्कैर्स हैं, राइट? तो हम लोग को ये भी डिसाइड करना पड़ेगा कि कौन से गुड्स एंड सर्विसेज हमें प्रोड्यूस करने हैं, मींस हमें, जैसे हमने एग्जांपल लिया था कैपिटल सॉरी आपका ये डिफेंस में जाना चाहिए आपका प्रोडक्शन ज्यादा, या एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स में जाना चाहिए, डिपेंड्स ऑन योर सिचुएशन। फिर उसके बाद हमें कैसे प्रोड्यूस करना है, कैसे का मतलब है टेक्निक कौन सी लेनी है ना, व्हाट वी स्टडीड अर्लियर, लाइक इट इज गोइंग टू बी अ कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक और लेबर इंटेंसिव टेक्निक, and who will receive the resource, मतलब benefits out of it, like what is the consumption, what is the kind of consumers that we have who will be receiving the resources, ठीक है, किसको ज्यादा जरूरत है। अभी जैसे हम लोगों ने एग्जांपल लिया था दूध का, भाई आपके घर में
दूध को प्लेन फॉर्म में सबसे ज्यादा जरूरत बच्चे की है, छोटे बच्चे की, टॉडलर की, करेक्ट यस है ना? तो उसको आप चाय तो नहीं दे सकते, नहीं नहीं कॉफी नहीं दे सकते, नहीं करेक्ट। अच्छा, और बड़े जो हैं उनको उनको चाय की जरूरत है, उनको चाय चाय दोगे, उनको आइसक्रीम नहीं दे सकते, यस यस चाय की करेक्ट। जरूरत सो मिडिल एज टू एडोलेसेंट आइसक्रीम yes, they need the ice cream. So in that case, you will have to see कि हमें कौन से गुड्स बनाने हैं, सर्विसेज बनानी है, किस टेक्निक से बनानी है, और किसके पास पहुंचना चाहिए। मतलब किसके पास पहुंचना चाहिए, देखो इकोनॉमिक्स की नजर से देखे तो वो डिस्ट्रीब्यूशन की बात कर रहे हैं। क्या डिस्ट्रीब्यूशन की बात कर रहे हैं कि भाई फेयर डिस्ट्रीब्यूशन हो, जिसमें ज्यादा से ज्यादा लोगों के पास आपके रिसोर्सेज पहुंच सके और ज्यादा से ज्यादा लोग सेटिस्फाइड हो। ठीक है, जब भी हेल्थ केयर प्रोग्राम्स एंड पॉलिसीज बनाई जाती हैं वो भी इस तरह से बनाई जाती है कि भाई मेरा अब जैसे फॉर एग्जांपल फ्री एजुकेशन की बात करें, है ना? यस फ्री एजुकेशन हम ज्यादातर या हम लोग बात करते हैं कि कम या सब्सिडाइज कॉस्ट पे एजुकेशन उन लोगों को मिले जो लोग उसको बिल्कुल भी अफोर्ड नहीं कर सकते, राइट? या जिसके घर में कोई मिस हैपनिंग हो जाती है, जिसके घर में पेरेंट्स नहीं है, जिसके घर में कोई अर्निंग सोर्स नहीं है, उनको मिले। आपका ओल्ड एज पेंशन प्लान है, वो हम कोशिश करते हैं ना कि जितने भी ओल्ड लोग हैं, सीनियर सिटीजन है, उनको मिले, राइट? यस उनको फेयरली कुछ अमाउंट मिल जाए ताकि वो अपने अपने एटलीस्ट बेसिक्स का ध्यान रख सकें। ऐसे ही आपके बहुत सारी पॉलिसीज एंड प्रोग्राम्स मेडिकल केयर को लेके भी हुई, करेक्ट? So the यस government is also trying to come up with the programs and policies which will give the maximum benefit to the people who are needy, who need that most. ठीक है, तो इसीलिए हम लोग डिस्ट्रीब्यूशन एस्पेक्ट का भी ध्यान रखते हैं ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों के पास रिसोर्सेज पहुंच सके। ठीक है, यस यस ठीक है। तो हेल्थ केयर जो सेंट्रल प्रॉब्लम्स है उसमें ये आ जाएगा। और आपका तो मोटा मोटी क्या बात क्या करी जा रही है कि भाई जो मेरे पास रिसोर्सेज है उसको हम मैक्सिमम यूटिलाइजेशन के साथ मैक्सिमम बेनिफिट्स दें अपने लोगों को, ताकि हमारा ये जो जो भी रिसोर्सेज का डिस्ट्रीब्यूशन है वो फेयरली हो, मतलब सबके पास थोड़ा थोड़ा पहुंच जाए, करेक्ट? यस सर ओके, नाउ नेक्स्ट कम्स व्हाई हेल्थ इकोनॉमिक्स इज इम्पोर्टेंट। अब ये यहाँ से ये आप लोग पढ़ोगे इस टॉपिक को अगेन सेल्फ रीडिंग एंड देन वी विल एक्सप्लेन एंड आई विल आस्क यू सम क्वेश्चंस आल्सो, राइट? So I'll give you 5 minutes again. ओके मैम Study this. This is very very important. And what do economics do? Like हमें ये भी सम पता होना चाहिए कि हेल्थ इकोनॉमिक्स को पढ़ने के बाद ये जो एक नॉर्मल पर्सन इकोनॉमिस्ट बन जाता है वो क्या करता है, उसके पास क्या क्या काम रहता है। ओके ओके ओके, योर टाइम स्टार्ट्स नाउ।
Guys, done? Guys, done or still doing it? Yes, Done, ma'am. ma'am. It's done, ma'am. कर लो कोई नहीं आई मीन अगर नहीं हुआ तो और दो बिकॉज यू नो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं यहाँ से क्वेश्चंस भी उठ के आते हैं राइट Yes, ma'am. Yes. you take another 3-4 minutes no problem take move 5 minutes study this क्योंकि जो हमने ऊपर से भी पढ़े हैं ना टॉपिक्स उसी को ही अप्लाई कर रहे हैं हम यहाँ पर ठीक है Yes, yes. take another 5 minutes no problem बस go through it thoroughly
Is it now done? Yes, ma'am. Continue. ठीक है, तो ये इसमें कुछ एक्सप्लेन करने की जरूरत है या समझ में आ गया है? कोई पॉइंट समझ में ना आया हो? और हेल्थ केयर एंड हेल्थ केयर सेटिंग बिहेवियर। सॉरी, बिहेवियर, which point? थर्ड पॉइंट में। अच्छा, ओके ओके। सो इट सेज कि हम जब जो हेल्थ इकोनॉमिक्स है वो ये देखते हैं कि कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जिनकी वजह से हेल्थ केयर की डिमांड में अप एंड डाउन आ रहा है। ठीक है, मींस कंज्यूमर के जो हेल्थ केयर रिक्वायरमेंट्स की जो बिहेवियर है, मींस जैसे फॉर एग्जांपल अभी जैसे अगर हम लास्ट 10 इयर्स या 15 इयर्स पहले की बात करें, इंश्योरेंस बहुत ही कम लोग लेते थे, राइट? यस यस। व्हाई? क्योंकि मैम तब तो ये उन लोगों का पता भी नहीं है, इतना डिजीज भी स्प्रेड नहीं था, कम्युनिकेबल और नॉन कम्युनिकेबल एग्जैक्टली डिजीज। एग्जैक्टली, मींस पहले सबसे इम्पोर्टेंट प्रॉब्लम जो था, ये सबसे बड़ी चीज आ, वो है, वो ये देखा जाता है कि भाई जो अवेयरनेस है यस, कम था। वो पहले बहुत कम थी। लोगों को यस पता ही नहीं था कि इंश्योरेंस के बेनिफिट्स क्या हैं, मेडिकल रिक्वायरमेंट्स किस तरह की आ सकती हैं, करेक्ट? यस यस। अब लोगों को समझ में आने लगा है कि भाई इस पैसे की बहुत, इंश्योरेंस की, सिक्योरिटीज की, मेडिकल सपोर्ट की, मेडिकल केयर की बहुत ज्यादा जरूरत है। बिकॉज लॉन्ग टर्म में अगर देखा जाए तो आपको इसमें अगर इंश्योरेंस रहता है तो यू एटलीस्ट हैव a kind of security to take care of the medical requirement, right? पहले उन यस लोगों को इन चीजों पे विश्वास ही नहीं था, क्योंकि पहले इतनी बीमारियां भी, बिल्कुल वेल सेड है, पहले इतनी बीमारियां भी नहीं होती थी। सही, ठीक है। यस यस। अब जैसे जैसे लोगों ने देखा, जैसे स्पेशली कोरोना देखा या इस तरह की डिजीज देखी जिसमें जैसे फ्लू वगैरह देखा, डेथ रेट भी बढ़ा हुआ देखा, people got to know that medical insurance is the utmost important requirement of an individual, and they started buying the insurance. And then so many companies have planned to offer a lot of policies, planning. They have given a lot of counseling to people. They have educated them through different advertisement, different programs also, which was not happening earlier, right? Or even if it was happening, people were not giving more importance to it. Now people have started realizing. तो इसका मतलब ये है कि जो कंज्यूमर का बिहेवियर है, मतलब कंज्यूमर किन फैक्टर्स की वजह से चेंज होता है अपनी हेल्थ केयर पॉलिसीज के लिए या मेडिकल प्लान्स के लिए, या कॉशियस हो जाता है अपनी हेल्थ को लेके, उन सारे फैक्टर्स को स्टडी करना भी हेल्थ इकोनॉमिक्स का काम होता है। ओके ओके। ठीक है, पॉइंट क्लियर? यस मैम। एनी अदर पॉइंट विच इज नॉट येट क्लियर? नो मैम, इट्स All done. Okay. So economics का basically क्या रोल रहता है? Economics study the ways a society uses scarce resources such as land, labor, capital, entrepreneurship या मशीनरी, जो भी बात करेंगे। तो जो इकोनॉमिस्ट रहते हैं वो प्रॉपर रिसर्च करते हैं, कलेक्ट करते हैं, डेटा एनालाइज करते हैं, मॉनिटर करते हैं और फोरकास्ट भी डेवलप करते हैं। मीन्स कि भाई आगे क्या हो सकता है, उसके हिसाब से हमें क्या करना चाहिए, ये सारी प्लानिंग आपका इकोनॉमिस्ट करता है। ठीक है, इकोनॉमिक्स। ओके ठीक है। ओके। मैम हेल्थ इकोनॉमिक्स का बेस्ट पर्पस
मतलब मैम फॉर बेस्ट यूटिलाइजेशन, फॉर रिक्वायरमेंट्स, मैक्सिमम यूटिलाइजेशन, मैक्सिमम बेनिफिट्स, ये सब पर्पस है ना? हाँ, यही तो हुआ। हम्म। ठीक है, डन। ओके मैम, ओके। ठीक है, अब हम नेक्स्ट क्लास में ना जो हम पढ़ने जाएंगे वो हम इकोनॉमिक इवैल्यूएशन और डिमांड सप्लाई का डिटेल और प्राइस फैक्टर, प्राइसिंग कैसे होती है, वो सारी चीजें हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। ठीक है, एनीथिंग, ओके एनी मैम, क्वेश्चन, एनी एक क्वेश्चन डाउट? है मैम। हाँ जी, मैम ऐसे एक क्वेश्चन है, हाँ। ये जो हेल्थ इंश्योरेंस वन काइंड ऑफ एसेट्स? स्मॉल टाइप ऑफ एसेट्स एज इन? मतलब मैम करंट एसेट्स? करंट एसेट्स क्या? क्या क्वेश्चन मुझे समझ में नहीं आया आपका। नहीं मैं बोल रहा हूँ, पब्लिक जब इंश्योरेंस करते हैं ना मैम, तो हाँ इंश्योरेंस वन काइंड ऑफ एसेट होता है ना? हाँ, क्योंकि ये तो सेफ मनी इसका पार्ट होगा, तो खर्चा भी कम होगा, तो वन काइंड ऑफ एसेट ही होगा ना एसेट तो है इंश्योरेंस? लेकिन साथ साथ आपकी लाइबिलिटी भी तो है, आप प्रीमियम भी तो भरते हो। यस यस यस। ठीक है ना, आपको ऐसा फ्री में थोड़ा ना मिल जाता है, आपको पे करना होता है उसके लिए प्रीमियम। यस ठीक है, तो ये बेसिकली एक्सपेंस भी है आपका, ये हर महीने या हर साल आप जो भी अमाउंट पे करते हो दैट इज एक्सपेंस। यस यस। Yeah, ma'am. एनी Hello. अदर क्वेश्चन गाइस, एनी अदर क्वेश्चन? Yes, ma'am. Can we consider the health insurance or the medical insurance as an asset when the plan get matures? हाँ, when it get mature of course you have the money back policy है, तो आपको एक अच्छा अमाउंट मिल जाता है। एंड Okay, ma'am. But in case till the matured, till it get matured, it is also a liability. kind of liability or you can say expense because you are paying it regularly, and Yes, ma'am. once it is mature of course it becomes your asset. Okay, ma'am. Yeah, I think we're good to close the class now. Yes ma'am, thank you so much. Okay, ma'am. Thank Thank you. you so much, Any ma'am. question, any doubt?